Hello everyone, how are you? I hope you all will be fine and doing your studies from home. So we were discussing colligative properties from the solution chapter. In the last videos, we had discussed relative lowering of the vapor pressure and elevation in the boiling point. In this video, we will discuss osmotic pressure. It's the third colligative property. So before discussing osmotic pressure, what is osmosis? So osmosis is the spontaneous flow of solvent molecule from the solvent to the solution or from less concentrated solution to a more concentrated solution through a semi-permeable membrane. मीन्स हमने क्या लिया है, एक बीकर लिया है, बीकर में हमने एक साइड वाटर फिल किया एंड ऑन द अदर साइड वी हैव टेकन कंसनट्रेटेड CuSO4 solution and both these liquids are separated by a semi-permeable membrane. ठीक है, this is the semi-permeable membrane. So what happens is water or solvent, water is solvent flows from solvent side to the CuSO4 solution. अब क्या होता है कि कंसंट्रेशन हमारी कहाँ पर ज़्यादा है, कंसंट्रेशन किसकी, सोल्यूट की होती है ना. CuSO4 की साइड हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है एंड वाटर क्या है, लेस कंसंट्रेटेड, या फिर इसमें तो कंसंट्रेशन है ही नहीं, किसके, सोल्यूट की. तो क्या होता है कि लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ हमारे पास क्या मूव करता है, सोलवेंट. सो हेयर वाटर इज द सोलवेंट, इट मूव्स टुवर्ड्स द CuSO4 solution. If we take here concentrated CuSO4 solution and on this side we take dilute CuSO4 solution, then also solvent or water molecule will move from dilute solution to the concentrated solution till the concentration in both the compartments becomes equal. Okay, so this exchange takes place through a semi-permeable membrane. ठीक है, so this is osmosis and there is another term called diffusion. So what is diffusion? Diffusion is the spontaneous mixing of the solute and solvent. ठीक है, solute and solvent का spontaneous mixing is known as diffusion. जैसे कि diffusion को समझने की कोशिश करते हैं. हमने क्या लिया, here is the solute is our concentrated CuSO4 solution. ठीक है, and in this solute we added water molecules, water droplets from the sides of the beaker, walls of beaker. हमने यहाँ से क्या किया, waters की addition शुरू की. Then what happens, for some time if we see, water or solvent molecule will reside on the upper layer and solute on the down layer. ठीक है, both these layers are separated. We clearly see copper sulfate जो solution होता है, it is blue colored and water is transparent. ठीक है, अब if we place this beaker for some time, for some days, then what happens कि whole solution becomes blue colored, यूनिफॉर्म ब्लू कलर का हो जाएगा. यहाँ पर क्या था कि हमारे पास जो ये वाला इतना हिस्सा था, ये हमारे पास कैसा था, ब्लू कलर का था. सोलवेंट हमारे पास कैसा था, ट्रांसपेरेंट होता है वाटर. कुछ टाइम बाद या फिर हमने कुछ डेज के लिए सॉल्यूशन रखा तो हमारे पास पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, ब्लू कलर का हो गया. ये किसका एग्जांपल है, डिफ्यूजन का. तो ऑस्मोसिस समझ आया. ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू ए मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन. और डिफ्यूजन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज डिफ्यूजन. ठीक है, सो नाउ what is semi-permeable membrane? Semi-permeable membrane क्या होती है, a membrane which allows the solvent molecule to pass through it but prevent passage of solute molecule. मतलब हमारे पास हमने सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन में सोल्यूट भी प्रेजेंट है एंड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है. जो सिर्फ सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करती है, सोल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करती है, सोल्यूट को अलाउ नहीं करती, वो हमारे पास क्या कहलाती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारी टू टाइप्स की हो सकती है. वन इज नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड अनदर इज आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, सो फर्स्टली व्हाट इज नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एग्जाम्पल हम इनका देखते हैं. नेचुरल के एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, वेजिटेबल मेम्ब्रेन एंड एनिमल मेम्ब्रेन्स आर द नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. Artificial semi-permeable membrane which we synthesize artificially in the laboratories. For example, parchment paper,
सेलोफेन या फिर हमारे पास कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर फेरोसाइनाइड एंड कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। दीज टू आर इनऑर्गेनिक salts which are used as artificial semi permeable membrane। सो डिफ्यूजन की डेफिनेशन हमने पढ़ी ली थी कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट टू फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्मोटिक प्रेशर। आवर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर है ना। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो हमने क्या लिया, हमने एक बीकर लिया है। बीकर में वी टेक सॉल्यूशन ऑन द वन साइड एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑन द अदर साइड। बोथ दिस liquids are separated by a semi permeable membrane, ठीक है। on the solvent side there is narrow tube and on the solution side there is a piston। we have fitted piston के लिए हमारी जो ट्यूब है वो कैसी है, थोड़ी वाइड है एंड ये नैरो ट्यूब है, ठीक है। तो हमारे पास होता क्या है कि हमें पता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने यहाँ पे लगा दी, तो हमारे पास सोलवेंट मोलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम द सोलवेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड और लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू ए मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अब अगर हम क्या करें, हम सॉल्यूशन साइड से यहाँ से प्रेशर लगाना शुरू कर दें तो क्या होगा कि प्रेशर लगाने पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की एंट्री सॉल्यूशन में नहीं हो पाएगी। सो द एक्सटर्नल प्रेशर हम यहाँ से तो लगा नहीं सकते, कहाँ से लगाना पड़ेगा हमें, यहाँ से पिस्टन के थ्रू। इस पिस्टन को हम नीचे की तरफ मूव करेंगे तो हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। सो इस प्रेशर से हमारा क्या होगा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास प्रेशर लगेगा और वो प्रेशर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से हमारे पास सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में आने से रोकेगा, ठीक है। सो द एक्सटर्नल प्रेशर विच जस्ट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from less concentrated solution to a more concentrated solution is known as osmotic pressure, ठीक है। डेफिनेशन समझ आ गई। अब इसके एक और डेफिनेशन हम दे सकते हैं, उसके लिए हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमने क्या लिया, हमने एक बीकर लिया। इन दी बीकर वी हैव टेकन डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, एंड इन दिस बीकर वी टिप्ड ए फनल, थीसल फनल, ठीक है, थीसल ट्यूब बोल देते हैं। In the thistle tube we have filled sugar solution. This green colored is sugar solution. अब now what happens is we know that here on the tip of the thistle tube we have added semi permeable membrane, okay, here it is semi permeable membrane. So what happens is water molecule will move from the distilled water to the solution side and the level of the sugar solution will rise say up to this point, ठीक है। up to this point हमारे पास sugar solution का क्या हो गया, लेवल बढ़ गया, क्योंकि वाटर हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर से शुगर सॉल्यूशन में एंटर कर चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास जो हाइट इंक्रीज हुई है उसको, ये वाली हाइट हमारे पास इंक्रीज हुई है, h हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब जो ये वाली हाइट है ये हमारे पास वापस प्रेशर एक्सर्ट करेगी, उस प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल देते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के भी इक्वल होता है। इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को एच रो जी, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे हैं इसको या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक ही बात है। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एच रो जी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर built up on the solution which just stop the osmosis। अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रेशर बिल्ट हुआ है वो फर्दर सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन में डिस्टिल्ड वाटर को मूव करने नहीं देगा। वो क्यों, क्योंकि अब क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में मूव करते हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स हमारे सॉल्यूशन से कहाँ पे मूव करेंगे, सॉल्वेंट साइड में। तो इसकी एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है, इट इज द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कॉलम सेट अप एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इक्विलिब्रियम पर जो ये प्रेशर आता है ये हमारे पास जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है वो हमारे पास क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई को हम, पाई मतलब हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, वो किसके इक्वल होता है, एच रो जी। एच मीन्स हाइट,
रो डेंसिटी एंड जी फॉर ग्रेविटी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? देखो, हमारे पास सोलवेंट मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन मूव कर रहे थे। रिवर्स ऑस्मोसिस में हमारे पास उल्टा हो जाता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या मूव करेंगे? सोलवेंट। क्यों? जब हम एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर देंगे। जैसे कि हमने यही लिया था, हम एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कितना लगा रहे थे मेजर करने के लिए, कि विच जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल। अब हमारे पास हमें रिवर्स ऑस्मोसिस करना है तो एक्सटर्नल प्रेशर हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वी हैव टू अप्लाई मोर एक्सटर्नल प्रेशर। अब जितना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि सॉल्यूशन से ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ पर मूव करना शुरू कर जाएंगे? सॉल्वेंट की साइड, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड। ठीक है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो हमारे पास मूवमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सॉल्यूशन से सोल्यूट की तरफ। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में भी यही होता है। इसमें क्या होता है, जब प्रेशर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है। जो मूवमेंट है उसकी वो अपोजिट डायरेक्शन में होने लग जाती है। ठीक है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन क्या हो सकती है? इसकी एक एप्लीकेशन है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। मीन्स हमारे पास जो सी वाटर होता है उसको हम डिसैलिनेट कैसे करते हैं, उसमें से सोल्ट कैसे निकालते हैं, या फिर उसको फ्रेश वाटर पीने लायक पानी में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो रिमूवल ऑफ सोल्ट फ्रॉम द सी वाटर। अब इसमें क्या होता है, वही वाला सेटअप है। एक साइड हमने क्या लिया? सी वाटर लिया है, एक साइड हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ली है। ठीक है, इधर है हमारे पास फ्रेश वाटर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से सी वाटर की तरफ पिस्टन से एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे। एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो क्या होगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सोलवेंट मॉलिक्यूल या वाटर की हमारे पास मूवमेंट होगी। कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो सी वाटर विल मूव फ्रॉम सोलवेंट मॉलिक्यूल और वाटर विल मूव फ्रॉम द सी वाटर साइड टू द फ्रेश वाटर एंड we can get the fresh water from the tap. okay, अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिवर्स ऑस्मोसिस में हम सेलुलोज एसीटेट की ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर हमें बहुत ज़्यादा अप्लाई करना होता है। तो ये वाली जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है सेलुलोज एसीटेट, ये इस प्रेशर को क्या कर सकती है? झेल सकती है। तो इसीलिए हम सिर्फ सेलुलोज एसीटेट की ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं। So that was the application of reverse osmosis. ठीक है। So now expression of osmotic pressure, expression of osmotic pressure। ठीक है, osmotic pressure हमने अभी देखा, किससे हमने इंडिकेट किया था? osmotic pressure को हमने इंडिकेट किया था पाई। ओके, तो osmotic pressure of a solution is found to be directly proportional to molar concentration। पाई किसके हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है? सी के। सी क्या है यहाँ पर? मोलर कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। ओके, अब देखो, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं? आर सी टी। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। सी क्या है? कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी। अगर कंसंट्रेशन के कोई और यूनिट दे रखी है तो हमें पहले उसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। टी क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट क्या हो सकती है? यूनिट इसकी हो सकती है एटमॉस्फेयर, बार, mmHg। ठीक है, या फिर पास्कल। अब अलग अलग यूनिट के हिसाब से हमारे पास आर की वैल्यू भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो न्यूमेरिकल्स में आपको कई बार क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर दिया होता है और कंसंट्रेशन या आर गैस कांस्टेंट पूछा हुआ होता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट डिफरेंट दी हुई होती है, तो इन यूनिट का क्या फ़र्क पड़ता है गैस कांस्टेंट पे?
ठीक है, मान लो आपको कंसंट्रेशन निकालनी है, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, तो आर की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे? अगर हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में दे रखी है तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी होती है? आर की वैल्यू होती है 0.0821, ओके, सॉरी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं। अगर हमारे पास आर जो है वो एटमॉस्फेयर में, मतलब पाई जो है वो एटमॉस्फेयर में दे रखा हो, तो आर की वैल्यू क्या होगी? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ओके। अगर हमारे पास पाई बार में दे रखा हो तो आर की वैल्यू हो जाती है 0.0831 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ओके। अगर हमारे पास पाई mmHg में दे रखा हो तो इसको हम क्या करेंगे? पहले एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे। एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने के लिए, एटमॉस्फेरिक यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है 760 mmHg किसके बराबर होता है? 1 atm के इक्वल होता है। तो 1 mmHg 1/760 atm हो गया। मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 mmHg प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो अगर 10 mm का निकालना है तो यहाँ पे अगर मैं 10 कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? 10/760 atm, ओके। उसके अलावा और कौन सी बच गई? पास्कल। अगर हमारे पास पाई पास्कल में गिवन है तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8.314, ओके। तो आर की वैल्यू अलग अलग होगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट पे। अगर आपको सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर ही निकालना हो और आर की वैल्यू ना दे रखी हो तो आर की वैल्यू हम एटमॉस्फेयर वाली कंसीडर कर देंगे, एटीएम वाली। एटीएम की वैल्यू क्या होती है? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ओके। सो वी वर एट पाई is equal to CRT. C is concentration in molarity. अब मोलैरिटी हमारे पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू RT, ओके। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास क्या होता है? W2 अपॉन M2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम, और इधर क्या आ जाएगा? RT पाई। न्यूमेरिकल्स में ये हो सकता है आपको W2 दे रखा हो, M2 पूछ रखा हो, बाकी सारी वैल्यूज गिवन हो, या फिर आपसे मोलिकुलर मास भी पूछ सकते हैं, या फिर आपसे गैस कॉन्स्टेंट भी पूछ सकते हैं। तो एक ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला, इससे आपके ऑस्मोटिक प्रेशर के सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। अब जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपको मान लो ये दे रखा हो कि 5% का कोई सॉल्यूशन है, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, ठीक है। 5% सॉल्यूशन है, उसका हमें क्या निकालना है? ऑस्मोटिक प्रेशर। टेम्परेचर आपके पास गिवन है, टेम्परेचर 273 दे रखा है मान लो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5% सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो 5% सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 5 ग्राम हमारे पास जो सोल्यूट है, 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट किस में डिजोल्व है? डिजोल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर सॉल्यूशन है, उसी के अंदर ही 5 ग्राम हमारे पास क्या है? सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स डिजोल्व है। अब जो सेंटीमीटर के क्यूब है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर में। एंड वी नो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर में कितने लीटर हो गए? 0.1 लीटर। W2 आ गया, V आ गया, वॉल्यूम आ गया। देखो W2 कितना हो गया? 5,
मान लो m कोई भी सॉल्यूशन आपको ये गिवन है, उसका मोलिकुलर मास, तो जैसे आपको सुक्रोज दे रखा है तो सुक्रोज का मोलिकुलर मास आ जाएगा, निकाल लोगे। वॉल्यूम कितना हो गया 0.1। आर की वैल्यू अगर नहीं दे रखी तो 0.0821 लेनी है, और टेम्परेचर आपका दे रखा है 273। मेरा इसका मतलब ये था कि 5% सोल्यूशन, अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो उसका मतलब समझ आना चाहिए कि 5% सोल्यूशन का मतलब क्या है, कि 5 ग्राम हमारे पास जो सोल्यूट है वो किस में डिजोल्व है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब 100 सेंटीमीटर क्यूब किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, वो किसके इक्वल होगा 0.1 लीटर। ठीक है, ये समझ आ गया। ओके, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करते हैं, 2-3 हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।